السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ حضرات سامعین کرام، آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جس کو فقہا نے اپنی فقہی کتابوں میں اس نام سے درج کیا ہے کہ المفسدات التی لا یفسد الصوم، کہ وہ مفسدات، وہ مفترات جن سے آدمی کا روزہ، روزے دار کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ عوام اپنی جہالت، اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھتی ہے کہ ایسی چیزوں سے بھی ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے، ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر بھائیو، ترتیب وار میں آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل رکھوں گا جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان چیزوں سے آدمی کا روزہ خراب نہیں ہوتا، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر کوئی بھول کر کچھ کھا پی لے یا بھول کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، بیوی سے جمع کر لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ میرے بھائی اور دوستو، جب وہ بھول کر کھائے گا، پیے گا یا بھول کر جمع کرے گا تو اس میں اس کا ارادہ شامل نہیں ہوگا، اور جب تک بندے کا گناہ کرنے پر ارادہ نہ ہو تب تک اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں دیتے یا اس پر احکام مترتب نہیں ہوتے۔ اور آدمی جب بھول کر کھاتا اور پیتا ہے تو اس میں بالکل اس کا ارادہ شامل نہیں ہوتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے سحری کھائی اور بالکل سورج طلوع ہونے والا تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا لیکن سورج طلوع ہونے والا تھا۔ وہ بیان فرماتی کہ ہم لوگوں نے سحری تو کھا لی لیکن وقت کے بعد کھائی، طلوع فجر کے بعد کھائی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روزہ قضا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بھول کر کے کھا پی لیتا ہے یا روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بھول کر کے جمع کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت سے بھول کر کے جو گناہ کیا جاتا ہے اس کو ہٹا لیا ہے۔ بھول کر کے آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زبردستی کرے، زبردستی کچھ کھلا دے، یا ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی جمع کر لے، ہم بستری کر لے اور اپنی بیوی کو جمع کرنے پر، ہم بستری کرنے پر مجبور کر دے، تب بھی ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر لیتا ہے ایمان لانے کے بعد، شرک کر لیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ لیکن اگر کوئی اس پر مجبور کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے، اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کفریہ جملہ بولنے پر یا شرکیہ جملہ بولنے پر، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی مواخذہ نہیں فرماتے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی مجبوری میں کفریہ جملہ بھی اپنی زبان سے نکال دے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں فرماتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی مجبور کر دیا جائے کھانے پر، پینے پر یا جمع کرنے پر تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، کھانا وغیرہ چکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے عورتیں گھروں میں کھانا بناتی ہیں، افطار کا سامان بناتی ہیں، سحری بناتی ہیں، یا اسی طرح سے مرد ہی اپنے گھروں میں بناتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے کہ نمک کتنا ہے، تیکھا پن کتنا ہے، یہ چیزیں چکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ نمک زیادہ نہ ہو جائے، تیکھا کم یا زیادہ نہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ کھانا چکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی صورت میں ان کا روزہ خراب نہیں ہوگا، ان کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ البتہ ایک چیز احتیاط کرنے کی یہ ہے کہ جب وہ سبزی یا اسی طرح سے گوشت اپنے منہ میں ڈالیں تو اس کو حلق کے اندر، معدے کے اندر نہ لے جائے، اس کو اندر نہیں لے جانا، بلکہ اس کو منہ پر اپنے زبان پر رکھ کر کے اس کو تھوک دے تاکہ اس کے اثرات اندر نہ جائیں۔ اگر اندر آپ لے جا رہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کو اس کو لے کر کے اس کے بعد تھوک دینا ہے تاکہ ذائقہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ بخاری کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کھانا بنانے والا اگر روزے دار ہے، کھانے میں سے کچھ چکھ لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یاد میرے بھائی اور دوستو، عورتیں یا مرد اگر کھانا بنا رہے ہیں روزے کی حالت میں تو کھانا چکھ سکتی ہیں، لیکن چکھ کر کے اس کو نگل دیں، اس کو اندر نہ لے کے جائے۔
इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, अगर रोज़े की हालत में कोई अपनी बीवी से बोसो किनार कर ले, किस कर ले, तो इंशाअल्लाह ताला उसका भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर बीवी से हमबिस्तरी कर रहा है, जेमा कर रहा है, तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन जेमा और हमबिस्तरी के अलावा अपनी बीवी से कुछ भी करे तो इंशाअल्लाह ताला उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। चाहे अपनी बीवी के जिस्म से अपना जिस्म मिलाए, बीवी से बोसो किनार करे, बीवी से किस करे, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। मेरे भाई और दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, बुखारी की रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा लेते थे और हमारे जिस्म से अपना जिस्म भी मिलाते थे। और ऐ लोगों, हज़रत आयशा बयान फरमाती, ऐ लोगों, तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाले थे। बताना ये चाहती है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप पे बहुत ज्यादा ज़ब्त रखते थे, बहुत कंट्रोल आपके अंदर था कि आप गर्चे बोसो किनार करते थे, किस करते थे, अपने जिस्म से मेरा जिस्म मिलाते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेमा और हमबिस्तरी रोजे की हालत नहीं कर सकते थे। आपको इतना कंट्रोल था। लिहाजा मेरे भाई, अगर किसी को कंट्रोल है, अपने आप पे जब्त कर सकता है, तो रोजे की हालत में अपनी बीवी से वो बोसो किनार कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अलबत्ता नौजवानों को इस चीज के बारे में एहतियात बरतनी चाहिए, इसलिए कि नौजवानों का खून गर्म होता है। वो बीवी के पास जाएंगे बोसो किनार करने के लिए, तो बहुत मुमकिन है कि वो रोजे की हालत में जमा कर बैठे, हम बिस्तरी कर बैठे। लिहाजा कम से कम रोजे की हालत में उनको इस चीज से परहेज करना चाहिए। और मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में खुद ऐसा वाकया पेश आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजे की हालत में मैं अपनी बीवी से बोसो किनार करना चाहता हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। एक दूसरे सहाबी आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमा दिया। तो पहले सहाबी जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी थी वो बूढ़े थे, दूसरे सहाबी जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था वो नौजवान थे। और जब जवान आदमी अपनी बीवी से बोसो किनार करेगा रोजे की हालत में, तो बहुत मुमकिन है कि जमा कर बैठे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सद्दे बाप के लिए उनको मना फरमा दिया। लिहाजा पता ये चला कि जिनको शक हो कि अपनी बीवी के पास जाने से जमा हो सकता है, बिस्तरी हो सकता है, तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए। अलबत्ता मसले के तौर पे, इल्म के तौर पे बात जाननी चाहिए कि बोसो किनार करने से, किस करने से आदमी का रोजा बातिल नहीं होता जब तक कि वो अपनी बीवी से जमा ना कर ले, अपनी बीवी से हम बिस्तरी ना कर ले। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, रोजे की हालत में अगर कोई ताकत का इंजेक्शन, ताकत के अलावा अगर कोई इंजेक्शन लगवा रहा है, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा नहीं टूटेगा। अगर कोई ग़िज़ाइयत वाली इंजेक्शन है, ताकत वाला इंजेक्शन है, सुई है, तो अगर आदमी अपने जिस्म उसको लगवा रहा है ताकत हासिल करने के लिए, पावर हासिल करने के लिए, या किसी और मकसद की खातिर, तो मेरे भाई और दोस्तों उसका रोजा बातिल हो जाएगा। अलबत्ता ताकत और ग़िज़ाइयत के अलावा लगाया गया इंजेक्शन से इंशाअल्लाह ताला आपका रोजा बातिल नहीं होगा। जैसे शुगर के बहुत सारे मरीज होते हैं, उनको सुई की वक्तन फवक्तन जरूरत पड़ा करती है, या इसी तरह से किसी को बुखार है, किसी को और कोई मर्ज है, तो अगर वो सुई लगवाएगा, इंजेक्शन लगवाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसका रोजा बातिल नहीं होगा, उसका रोजा खराब नहीं होगा। लेकिन इस शर्त के साथ कि ताकत का इंजेक्शन ना हो। अगर ताकत का इंजेक्शन है तो उसका रोजा बातिल हो जाएगा। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, हजामत करवाने यानी सेगी लगवाने, पोछना लगवाने से भी रोजेदार का रोजा नहीं टूटता है। असल में ये मसला एक ऐसा मसला है कि रोजे की हालत में हजामत करवाना दुरुस्त कि नहीं, पोछना लगवाना दुरुस्त कि नहीं, एक ऐसा मसला है जो मुफत्तरात सौम के मुश्किल तरीन मसाइल में से, और उलमाए किराम का इस मसले के बारे में बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। लेकिन मेरे भाइयों, राजिह बात यही है, सही बात यही है कि हजामत करवाने से, रोजे की हालत में अगर कोई हजामत करवा रहा है, सीनी लगवा रहा है, पोछना लगवा रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला उसका रोजा बातिल नहीं होगा। हजरत सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि इहतजमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा साइम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोछना लगवाया, सेंगी लगवाई, हिजामत करवाया, इस हाल में कि आप रोजे से थे। तो पता चला मेरे भाइयों, रोजे की हालत में हजामत करवाने से आदमी का रोजा बातिल नहीं होता। इसकी मुखालफत में भी बहुत सारी रिवायतें हैं, लेकिन तमाम रिवायात का ततब्बु करने के बाद, गौर फिक्र करने के बाद यही पता चलता है कि हजामत करवाने से आदमी का रोजा बातिल नहीं होता है। अलबत्ता मेरे भाइयों, उलमाए कराम ने बात बयान फरमाई, जिन उलमाए कराम की ये राय है कि हजामत करवाने से रोजा नहीं टूटता, वो उलमाए कराम ये बात बयान फरमाते कि रोजे की हालत में हजामत करवाने से बचना चाहिए, और ये बात मकरूह है, यानी जायज तो है आदमी के, लेकिन उससे बचना चाहिए। ज्यादा बेहतर है कि रोजे की हालत में ना करवाए। अगर उसको करवाना है तो इफ्तार करने के बाद, मगरिब के बाद हजामत करवाए, लेकिन जायज है आदमी का, उससे रोजा नहीं टूटता है। मेरे भाइयों, इसलिए उलमाए कराम ने मकरूह कहा कि इसमें कमजोरी का ज्यादा शायबा होता है, और आदमी के जिस्म से जब बहुत ज्यादा मिकदार में खून निकल जाता है तो इंतहाई कमजोर पड़ जाता है, और बहुत मुमकिन है कि उसका रोजा फासिद हो जाए। इसलिए उलमाए कराम ने उसको मकरूह जाना है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, हमें बचना चाहिए, और मगरिब के बाद ही अगर हजामत करवाने की जरूरत पड़े तो इफ्तार के बाद ही करवाना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई करवा ले तो इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई हरज की बात नहीं है, उसका रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, मजी के निकलने से भी आदमी का रोजा फासिद नहीं होगा। मजी असल में पेशाब के रास्ते से
चार चीजें निकलती हैं। आदमी के पेशाब के रास्ते से चार चीजें निकलती हैं। एक तो पेशाब, एक वदी, एक मजी, एक मनी। मेरे भाइयों दोस्तों, तो मजी जो मनी के बारे में इससे पिछले दर्स में मैंने आपके सामने बहुत तफसील के साथ मजी के बारे में बताया कि मजी की पहचान क्या है, और अगर आदमी जानबूझ करके मजी निकाल रहा अपने हाथ से, हैंड प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका रोजा बातिल हो जाएगा, उसका रोजा टूट जाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं, उस पर मैंने दलीलें भी दी थी। लेकिन मेरे भाइयों, मजी के अलावा एक चीज होता है, मनी के अलावा एक चीज होता है मजी। अगर मजी निकल रहा है शर्मगाह के रास्ते से तो आदमी का रोजा बातिल नहीं होता है, रोजा टूटता नहीं। असल में मजी निकलता कब है? आदमी कोई गंदा ख्याल अपने जहन में लाया, या फहश को तस्वीरें देख लिया, या इसी तरह से अपनी बीवी पर उसकी बार बार नजर जा रही है, या इसी तरह से फहश मनाजिर उसके जहन में चल रहे हैं, तो ऐसी चीजों के सोचने से और उन चीजों की फिक्र करने से आदमी की शर्मगाह के और पेशाब के रास्ते से मजी निकल आता है, जो इंतहाई बारीक होता है, सफेद होता है, छलक करके नहीं निकलता है, बल्कि बसा औकात आदमी को पता भी नहीं चलता है, तो इसको मजी बोला जाता है। तो मेरे भाइयों, अगर मजी निकल जाए तो आदमी का रोजा बातिल नहीं होगा। लेकिन मजी निकलने के जो तरीके हैं, जो असबाब हैं, उन असबाब को हमें बंद करना चाहिए। जैसे ऐसी चीजों की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, या ऐसे वीडियोज हमें नहीं देखना है, या ऐसी गंदी ख्यालात को अपने जहनों में नहीं लाना है कि उससे हमारा मजी निकल जाए और हमारे रोजे पर असर पड़े। अगर हम कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे रोजे के सवाब में कमी कर दी जाएगी, हमारे रोजे के अज्र में कमी कर दी जाएगी। बल्कि मेरे भाइयों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक बयान फरमाते हैं कि अगर रोजे की हालत में मजी निकल जाए पेशाब के रास्ते से तो रोजेदार का रोजा बातिल हो जाता है। जबकि सही बात तो ये नहीं है, रोजा बातिल नहीं होगा। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, मसले की खतरनाकी आप देखिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ तक बयान फरमा दिया कि अगर मजी निकल जा रहा है तो रोजा बातिल हो जाता है। रोजा बातिल नहीं होता, लेकिन आदमी ऐसी चीजें अपने ज़हनों में, ऐसे ख्यालात अपने ज़हनों में ना लाए कि जिससे मजी निकले और उसके अज्र में कमी कर दी जाए। इसी तरह से मेरे भाई, एक बहुत बड़ा मसला है और इस बारे में लोग बहुत ज्यादा गलतफहमी के शिकार हैं, और बस औकात लोग इख्तलाफ भी कर लेते हैं कि क्या टूथ पेस्ट के करने से भी आदमी का रोजा टूट जाता है? मंजन के करने से, बहुत सारे मंजन पाउडर की शक्ल में होते हैं, बहुत सारे मंजन पेस्ट की शक्ल में होते हैं, तो क्या ऐसे मंजन करने की वजह से आदमी का रोजा टूट जाता है? मेरे भाई और दोस्तों, टूथपेस्ट करने या मंजन करने की वजह से रोजा बातिल नहीं होता, रोजा नहीं टूटता है। इसकी बहुत सारी वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि इसकी असल कुरान और सुन्नत से मिलती है। इसकी असल क्या मेरे भाइयों, आदमी मंजन क्यों करता है, आदमी ब्रश क्यों करता है? ब्रश इसलिए करता है ताकि अपने मुंह की सफाई करे, अपने दांत को साफ करे, अपने मुंह को ज्यादा साफ करे, यही मकसद होता है। और इसकी असल क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक करना साबित है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोजे की हालत में मिसवाक करना साबित है। बुखारी की रिवायत है, हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजे की हालत में मिसवाक करते देखा है। लिहाजा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में मिसवाक की है और उसे रोजा बातिल नहीं होगा, तो इंशाअल्लाह ताला अगर आदमी रोजे की हालत में टूथपेस्ट कर रहा है या पाउडर वाला मंजन कर रहा है किसी भी शक्ल में, तो इंशाअल्लाह ताला उसका रोजा बातिल नहीं होगा, उसका रोजा नहीं टूटेगा। मेरे भाई और दोस्तों, ये पहली चीज है। दूसरी चीज, लेकिन ये बात याद रहे कि मिसवाक करना ये अफजल है, ये बेहतर है और यही सुन्नत है। मिसवाक आदमी को रोजे की हालत में करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी के पास मिसवाक हमेशा मुहैया हो, हर आदमी के पास हमेशा मिसवाक रोजे की हालत में मौजूद है, बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा मेरे भाई, अगर मुंह की सफाई के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या पाउडर मंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनका रोजा बातिल नहीं होगा। पहली वजह मैंने बताई। दूसरी वजह क्या मेरे भाइयों, अहले इल्म ने बताया कि जो चीजें आदमी खाता है वो मुंह में जाने के बाद उसके 3 मरहले होते हैं। सबसे पहला मरहला वो चीज मुंह में रहती है, दूसरा मरहला उसका ये होता है कि वो हलक तक पहुंच जाती है, और तीसरा मरहला ये होता है कि वो चीज मैदे तक पहुंच जाती है। तो अगर उलमाए कराम का इस बात पर इजमा है कि अगर कोई चीज आदमी मुंह में डाल रहा, खाने पीने वाली चीजें, अगर वो सिर्फ मुंह तक है तो उलमाए कराम का इस बात पर इजमा है कि उसका रोजा नहीं टूटता, अगर मुंह तक है वो चीज। और अगर वो चीज मैदे तक पहुंच गई है, हलक के रास्ते से मैदे तक पहुंच गई, तो उलमाए कराम का इस बात पर इजमा है कि आदमी का रोजा, साइम का रोजा फासिद हो जाता है, बातिल हो जाता है। इसलिए कि कोई भी चीज जानबूझ करके अगर मैदे तक वो चीज पहुंच गई है तो इसमें कोई शक नहीं कि उसका रोजा बातिल हो जाएगा, उसका रोजा फासिद हो जाएगा। और अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात पर इजमा नकल फरमाया है कि उलमाए कराम का इस बात पर इजमा है कि अगर मैदे तक चीज पहुंच जाती है अमदन तो उसका रोजा बातिल हो जाता है, उसका रोजा फासिद हो जाता है। और अगर वो चीज मुंह तक है तो उसका रोजा खराब नहीं होगा। अलबत्ता अगर कोई चीज हलक तक पहुंचती है तो इसके बारे में उलमाए कराम का इख्तलाफ है, लेकिन सही बात यह है कि हलक तक भी अगर कोई चीज पहुंच रही है तो उसका रोजा बातिल नहीं होगा जब तक वो चीज मैदे तक ना पहुंच जाए। अब मेरे भाइयों, टूथपेस्ट के मसले को लेकर के हम गौर करें या पाउडर मंजन के मसले को लेकर के हम गौर करें कि वो चीजें बिल आम तौर से मुंह तक ही रहती,
मुंह तक ही रहती हैं, मैदे तक नहीं पहुंचता है, इल्ला ये कि इसके बारे में कोई गफलत का शिकार हो तो वो चीज़ मैदे तक पहुंच जाती है। अगर मैदे तक वो चीज़ पहुंच जाएगी तब आदमी का रोज़ा फासिद हो जाएगा। अलबत्ता अगर मुंह तक वो चीज़ है, टूथपेस्ट आदमी इस्तेमाल कर रहा है या मंजन इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरे भाई और दोस्तों चूंकि मुंह तक है और उलमाए कराम का इस बात पर इजमा है कि जो चीज़ मुंह में हो उससे आदमी का रोज़ा बातिल नहीं होता, आदमी का रोज़ा नहीं टूटता है। तीसरी चीज़ मेरे भाई गौर करें, पानी क्या है? अगर आदमी कोई पानी पी ले तो पानी से रोजा टूट जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, पानी से रोजा टूटता है। लेकिन वही पानी जब आदमी अपने मुंह की सफाई के लिए इस्तेमाल करता है, अपने मुंह के अंदर डालता है, तो मेरे भाई और दोस्तों उससे रोजा नहीं टूटता। क्यों? इसलिए कि वो पानी मैदे तक नहीं पहुंच रहा है, बल्कि उसके सिर्फ मुंह के अंदर पानी रोजा तोड़ता है, लेकिन चूंकि मुंह के अंदर है इसलिए आदमी का रोजा फासिद नहीं हुआ, रोजा नहीं टूटा। तो बिल्कुल यही मसला टूथपेस्ट का भी है। अगर आदमी टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहा है, मंजन का इस्तेमाल कर रहा है और वो चीज मैदे तक नहीं पहुंचती, सिर्फ मुंह के अंदर है, तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। जिस तरह से पानी से रोजा नहीं टूटेगा, उसी तरह से टूथपेस्ट के इस्तेमाल से भी आदमी का रोजा नहीं टूटेगा। बल्कि मेरे भाइयों बसा औकात तो ऐसा होता है कि आदमी जब पानी इस्तेमाल करता है तो पानी के बहुत सारे कतरात, पानी के बहुत सारे बकियात मुंह के अंदर रह जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आदमी कुल्ली कर रहा तो मुकम्मल 100% पानी निकल जाए, बात उसको थूक दे, कुल्ली करके उसको थूक दे, ऐसा नहीं। बल्कि पानी के बहुत सारे बकियात, बहुत सारे कतरात मुंह के अंदर रहते हैं और वो पानी के कतरात थूक के साथ मिल करके मैदे के अंदर चले जाते हैं, मैदे के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उलमा किसी आलिम ने इस बात का फतवा नहीं दिया है कि ऐसे पानी से आदमी का रोजा टूट जाता है। अगर पानी के कतरात थूक के साथ मिलकर के मैदे के अंदर चले जाए तो किसी एक भी आलिम का फतवा नहीं कि उससे रोजा टूट जाता है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों टूथपेस्ट के इस्तेमाल से भी रोजा नहीं टूटता है। ये तीसरी बात। चौथी बात है मेरे भाई और दोस्तों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस बात की इजाजत दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी इजाजत दी है कि अगर औरतें घरों में खाना बना रही हों या मर्द घर में खाना बना रहा हो और उसको खाने की चखने की जरूरत पड़े, नमक वगैरह जांचने के लिए, तीखापन वगैरह देखने के लिए, तो आदमी खाने को अपने मुंह के अंदर रख ले और उसके बाद उसको थूक दे। तो इसी चीज को हम टूथपेस्ट में भी कयास कर सकते हैं कि जब तक वो चीज मुंह में रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला उसका रोजा बातिल नहीं होगा। लिहाजा 4 वजह मैंने आपके सामने बताई हैं कि टूथपेस्ट के इस्तेमाल करने से आदमी का रोजा बातिल नहीं होगा। लेकिन एक बार तो फिर मैं आखिर में कहूंगा कि आदमी के लिए बेहतर है, आदमी के लिए अफजल है कि मेरे भाई और दोस्तों वो मिसवाक का इस्तेमाल करे, इसलिए कि यही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसमें ज्यादा एहतियात है, इसमें ज्यादा बचाव है। अलबत्ता बहुत सारे मंजन ऐसे रहते हैं कि आदमी, एक मसला मेरे भाइयों की, बहुत सारे मंजन ऐसे रहते हैं, पाउडर मंजन, कि उनका इस्तेमाल करना हराम होता है। जैसे गुल आदमी करता है, ये नशावर मंजन है। उलमाए कराम ने इसको हुर्मत का फतवा दिया। लिहाजा ये न रोजे की हालत में दुरुस्त है, न गैर रोजा की हालत में दुरुस्त है, किसी भी हालत में दुरुस्त नहीं है कि आदमी ऐसे मंजन का इस्तेमाल करे जो हराम है और हुर्मत वाले मंजन है जिसमें नशा होता है या मेरे भाई उसमें नशावर चीजें पाई जाती। लिहाजा ऐसी किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं। लेकिन उससे आदमी का रोजा फासिद नहीं होता है, वो चीज मुफत्तरात सौम में से नहीं है, उसका रोजा फासिद नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों ऐसी सूरत में हमें रोजे की हालत में उनसे बचना बदरजे औला जरूरी, इसलिए कि जब रोजे के अलावा वो चीजें हराम है तो रोजे की हालत में तो बदरजे औला वो चीज हराम होगी। और मेरे भाइयों कैसे लोगों की जमीर इस बात पर गवारा करती है कि वो लोग अल्लाह ताला की रजा के लिए रोजा रख करके हलाल चीज को छोड़ देते हैं, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, जमा छोड़ दिया, अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना छोड़ दिया अल्लाह ताला की रजा के लिए। जब हलाल चीज उन्होंने अल्लाह ताला की रजा के लिए छोड़ दिया तो मेरे भाइयों हराम चीज को रोजे की हालत में क्यों नहीं छोड़ पाते वो लोग? नशावर मंजन क्यों लोग रोजे की हालत में इस्तेमाल करते हैं? लिहाजा मेरे भाइयों हमें किसी भी सूरत में रोजे की हालत में ऐसे मंजन या ऐसे नशावर चीजों का इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए जिससे हमारे रोजे के फासिद होने का खतरा हो, और रोजा फासिद होने का खतरा हो प्लस मेरे भाई उसकी हुर्मत हो और उसके इस्तेमाल करने पर हमें गुनाह भी मिलता हो। लिहाजा मेरे भाइयों टूथपेस्ट के इस्तेमाल करने से भी आदमी का रोजा नहीं टूटता है। इसी तरह से वो चीजें जिससे रोजा नहीं टूटता मेरे भाइयों, एक है इस्तिहाजे का खून। औरतों को जो खून आता है उसकी बहुत सारी किस्में। एक खून आता है निफास का, जब बच्चा पैदा होता है तो विलादत के वक्त औरतों को खून आता है, 30 दिन 35 दिन 40 दिन मुख्तलिफ औकात होते हैं औरतों के खून आने के, अलग अलग औकात होते हैं। किसी औरत को 30 दिन ही आता है, किसी को 20 दिन में खत्म हो जाता है। अक्सर मुद्दत उलमाए किराम ने इसकी 40 दिन बताई है। तो एक खून ही होता है जो निफास, जिसको निफास वाला खून बोलते हैं। एक खून होता है हैज का खून, ये माहवारी खून होता है, एमसी जिसको बोला जाता है। हर महीने हर औरत को आता है, जब औरत बालिग हो जाती है तो हर महीने आता है, जिसकी अक्सर मुद्दत 6 दिन या 7 दिन हुआ करती है। लेकिन मेरे भाइयों हैज और निफास के खून के अलावा औरतों को एक तीसरा खून आता है जिसको इस्तिहाजे का खून बोला जाता है। ये बीमारी का खून होता है और औरतों को ये खून भी आता है। लिहाजा मेरे भाइयों अगर औरतों को इस्तिहाजे का खून आ रहा है जो हैज के अलावा निफास के अलावा है, तो औरतें इस खून को देख करके अपने रोजे को ना तोड़े, अपने रोजे को मत तोड़े, अपने रोजे को फासिद ना करें। बाद औरतें समझती हैं इस खून को देख करके हैज का खून है और वो रोजा सिर्फ लाइल्मी की वजह से, मसले के ना जानने की वजह से रोजा तोड़ देती है। मेरे भाई और दोस्तों औरत ये देखे कि उसको हर माह
जो खून आता है 6 दिन या 7 दिन, 6 या 7 दिन जब उसको हैज का खून आ जाए और उसके बाद भी अगर उसका खून जारी और सारी है, खून अभी आ रहा है, तो उस खून को वो हैज का खून शुमार ना करे। 6 या 7 दिन वाले खून को हैज का खून शुमार कर ले, उसके बाद जो खून आ रहा है उस खून को इस्तिहाजे का खून शुमार करके उसके बाद वो रोजा भी रखेगी, नमाज भी पढ़ेगी, इसलिए कि इस्तिहाजे के खून से रोजा बातिल नहीं होता, रोजा खराब नहीं होता, हैज के खून से रोजा खराब होता है। लिहाजा ये मसला औरतों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर हमें इस्तिहाजे का खून आ रहा है तो हमें अपने रोजा भी रखना है और हमें नमाजें भी पढ़नी है। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, जिन चीजों से आदमी का रोजा बातिल नहीं होता कि बगैर कसद के, बगैर इरादे के, बगैर नीयत के अगर कोई चीज अंदर चली जाए तभी रोजा बातिल नहीं होगा, या बाहर ही निकल आए तो आदमी का रोजा बातिल नहीं होगा। बगैर कसद के, उसका कोई इरादा भी नहीं है, कसद भी नहीं है, और उसका कोई चीज अंदर चली गई तो रोजा बातिल नहीं होगा, या अंदर से बाहर आ गई। जैसे मेरे भाइयों, बहुत सारे लोगों को क़य आ जाता है, जिसको हम अपनी जबान में उल्टी या पलटी बोलते हैं। अगर किसी को क़य आ जाए, उल्टी या पलटी आ जाए, तो मेरे भाइयों ऐसी सूरत में भी आदमी का रोजा बातिल नहीं होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसको क़य आ जाए तो अपने रोजे को पूरा करे, और जो जानबूझ करके क़य लाए तो ऐसा आदमी अपने रोजे की क़ज़ाई दे, यानी उसका रोजा टूट गया, दोबारा उसको रोजे की क़ज़ा करनी पड़ेगी। तो पता ये चला कि अगर बगैर इरादे के क़य आ जा रहा है तो मेरे भाइयों हमें रोजा नहीं तोड़ना। बहुत सारे लोग जहालत में और दीन के इस मसले की अदम वाक़फियत की बना पर अगर उनको क़य आ जाता है, वो लाते भी नहीं, अपने आप क़य आ जाता, बगैर किसी इरादे के वो रोजा तोड़ देते हैं। मेरे भाइयों गलत बात है। अगर आपने रोजा तोड़ दिया तो आपको दोबारा रोजे की क़ज़ाई देनी है। लिहाजा मसला हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर क़य खुद बखुद आ जाए तो हमारा रोजा नहीं टूटता, इसलिए कि बगैर कसद, बगैर इरादे के आया है। इसी तरह से मेरे भाइयों, अगर कुल्ली करते वक्त मुंह के अंदर पानी चला जा रहा है क्योंकि बगैर इरादे के है, बगैर नियत, बगैर कसद के है, तो ऐसी सूरत में भी हमारा रोजा नहीं टूटता। इसी तरह से अगर बंदा रोजे की हालत में एहतलाम हो जाए, उसका मनी निकल आए, लेटा हुआ दिन में उसको मनी निकल आया, एहतलाम हो गया, तो ऐसी सूरत में भी उसका रोजा नहीं टूटता है, इसलिए कि इस एहतलाम पर उस आदमी का इख्तियार नहीं है और बगैर कसद और बगैर इरादे के एहतलाम आता है। लिहाजा ऐसी सूरत में भी आदमी का रोजा बातिल नहीं होगा। और मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर एहतलाम आ जाता है तो आदमी का रोजा बातिल हो जाता है। ये गलत बात है और इंतहाई परले दर्जा की जहालत है। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, नापाकी की हालत में आदमी का रोजा भी फासिद नहीं होता। जैसे आदमी रात को अपनी बीवी से हमबिस्तर हुआ और सुबह हो गई, आदमी रोजा रखना चाहता है, तो क्या अब उसका रोजा नहीं माना जाएगा? उसका रोजा है, बरकरार है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए कि एहतलाम या नापाकी से पाक होना ये नमाज के लिए शर्त है, रोजे के लिए शर्त नहीं। आदमी के जिस्म का पाक होना, उसके कपड़ों का पाक होना, ये नमाज के लिए शर्त है। पाकी नमाज के लिए शर्त है, रोजे के लिए शर्त नहीं है। लिहाजा अगर रोजे की हालत में एहतलाम आ जाए या उस नापाक हो जाए तो उसके रोजे पर जर्रा बराबर असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, आदमी को जमाई आ गई या उसने अपना मुंह खोला और अंदर मक्खी चली गई या मच्छर चला गया या धूल के बहुत सारे कतरात चले गए, जर्रात चले गए, तो ऐसी सूरत में भी आदमी का रोजा बातिल नहीं होगा, रोजा खराब नहीं होगा, इसलिए कि चीजें बगैर इरादे के, बगैर कसद की होती हैं। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, बहुत सारे लोग गुमान करते हैं कि औरतें अगर हमल से हों या औरतें अगर अपने बच्चों को दूध पिला रही हों, यानी हालत रज़ात में हों, तो ऐसी सूरत में भी औरतों का रोजा टूट जाता है, वो रोजा नहीं रख सकती। ये बात बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमल वाली औरतों को, जिनके पेट में बच्चा हो, मुर्ज़िआ औरतों को, दूध पिलाने वाली औरतों को, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोजे की रुख्सत दी है। अगर वो तकलीफ पा रही हैं और उनको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, रोजा रखने की ताकत उनके अंदर नहीं, तो रोजा ना रखें। लेकिन ये गुमान करना, ये सोचना कि हालत हमल में या हालत रज़ात में औरतें रोजा नहीं रख सकती हैं, बहुत ही जहालत की बात है। अगर कोई औरत हमल की हालत में रोजा रखना चाहती है, उसको नुकसान का डर नहीं है, तो मेरे भाई और दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि वो रोजा रखे, हमल की हालत में भी रोजा रखा जा सकता है। इसी तरह से अगर कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है और दूध पिलाने के बावजूद भी रोजा रख सकती है, उसके अंदर इतना ताकत है, इतना पावर है और उसको कोई कमजोरी का डर नहीं है, तो दूध पिला करके भी रोजे की हालत में वो रोजा रख सकती है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बात औरतें ऐसी होती हैं कि रोजे की हालत में रोजा तो रहती हैं लेकिन अपने बच्चे को रोजे की हालत में दूध नहीं पिलाती है, बच्चा तड़पता है। मेरे भाइयों, अगर ऐसा मसला, तो आप बच्चे के साथ जुल्म करो, आप रोजा छोड़ दीजिए, आप रोजा छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो बच्चे के साथ जुल्म हो जा रहा है। लेकिन अगर आपको रोजा रहना है तो आप अपने बच्चे को दूध पिलाइए और उसकी खुराक पूरी कीजिए, उसका जो हक है उसको अदा कीजिए, और ये गुमान कतान मत कीजिए कि रोजे की हालत में बच्चों को दूध पिलाने से रोजा टूट जाता है। ये सारी गलत बातें हैं और इसकी कुरान और सुन्नत में कोई भी हैसियत नहीं है। दूध पिला करके भी आप रोजा रख सकती हो, अगर आप छोड़ना चाहें तब भी छोड़ सकती हो। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, आंख और कान में दवा डालने से भी रोजा नहीं टूटता। अलबत्ता नाक का मसला अलग है। आंख में अगर आदमी ने दवा डाल ली, कान में दवा डाल ली, तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन नाक का मसला अलग है। नाक
کا تعلق چونکہ معدے سے ہے، اسی لیے علماء کرام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر آدمی ناک میں دوا ڈال رہا ہے تو چونکہ ناک کا تعلق ڈائریکٹ معدے سے ہوتا ہے، اسی لیے ناک میں روزے کی حالت میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے. یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا بالغوا فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم ناک کے جھاڑنے میں مبالغہ کرو، ناک کو صاف کرنے میں مبالغہ کرو، اللہ یہ کہ تم روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ پانی کے قطرات معدے کے اندر چلے جائیں. اس لیے روزے کی حالت میں علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ناک میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. البتہ اگر کان میں دوا ڈالنی ہے یا اسی طرح سے آنکھ میں دوا ڈالنی ہے، ڈراپ وغیرہ ڈالنا ہے، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا. اسی طرح میرے بھائیو کہیں کوئی زخم ہو گیا ہے اور ہمیں اس پہ دوا لگانا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا. آنکھ میں سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاتھ میں مہندی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، دانت کو اکھڑوانے اور توڑوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے اگر ناک سے خون گر جائے، نکسیر پھوٹ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یا اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو اگر آدمی کو چوٹ لگ جائے تو اور بہت زیادہ مقدار میں خون گر جائے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے خون کے ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو تھوک کے نگلنے سے، بلغم کے نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر بلغم باہر آ جائے، ایک دم منہ کے پاس آ جائے تو اس کو پھینک دینا چاہیے، اس کو باہر نکال دینا چاہیے، اندر نہیں نکلنا چاہیے. البتہ اگر حلق کے پاس ہے اور اس کو نگل لے رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے گرمی کی وجہ سے یا بہت زیادہ دھوپ کی وجہ سے اور بہت زیادہ سخت پیاس کی وجہ سے اگر آدمی اپنے سر پر پانی ڈالے، بار بار اپنے جسم کو بھگائے، بال کو ٹھنڈا کرے، اپنے جسم کو ٹھنڈا کرے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی وجہ سے اور سخت پیاس کی وجہ سے بار بار اپنے سر پہ پانی ڈالتے تھے تاکہ تھوڑا آسانی ہو اور سکون محسوس ہو. اگر آدمی روزے کی حالت میں ایسا کر رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. بار بار نہا رہا ہے یا بار بار اپنے چہرے کو دھل رہا تب بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. اسی طرح میرے بھائیوں پاخانے کے راستے سے اگر کوئی دوا اندر ڈال رہا ہے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے جیسے بہت سارے اسہال کے مریض ہوتے ہیں اور وہ پاخانے کے راستے سے دوا ڈالتے ہیں تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. دما کا مریض اگر بھاپ لے رہا ہے، چونکہ وہ مجبور ہے بھاپ لینے پر، اگر بھاپ لے رہا ہے تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس کے لیے بہتر ہے کہ افطار کرنے کے بعد ہی بھاپ لے، لیکن اگر لے رہا ہے تکلیف زیادہ ہے تب انشاءاللہ تعالیٰ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستوں کنگھی کرنے سے، تیل لگانے سے بھی آدمی کا روزہ فاسد نہیں ہوتا. اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ میرے بھائیوں ان چیزوں کے کرنے سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن چونکہ لوگ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے کرنے کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے. ہمیں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ میرے بھائیوں مفطرات صوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو مفطرات صوم بتایا ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں صرف انہی چیزوں کو مفطرات صوم، مفسدات صوم ماننا چاہیے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں آدمی ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کسی چیز میں شک ہو جائے تو اس کے بارے میں ہمیں احتیاط برتنا چاہیے اور یقین پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ شک کی وجہ سے اس پر عمل کر لیں اور ہمارا روزہ ٹوٹ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مولا تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم روزے کے مسائل کو سمجھیں اور دین کے تمام مسائل کو سمجھیں، بالخصوص روزے کے مسائل کو سمجھ کر کے اس پر عمل کریں. اور اے میرے مولا تو ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.